Hello dear students, welcome to lecture number 6 of logarithms. In basic mathematics, this logarithm is very important for 11th and 12th standard. In last lecture, we have completed question number 1 from second question, that is show that. उसमें का second question देखते हैं. Instruction of the question है show that number 1 log of a raised to 5, second number, log of a raised to 5 to the base b into log of a raised to b raised to 3 to the base c into log of c raised to 7 to the base a is equal to 105. ये हमें प्रूव करना है, तो इसकी LHS लेंगे. LHS is equal to log of a raised to 5 to the base b into log of b cube to the base c into log of c raised to 7 to the base a. Now, using the change of base law, that is log of m to the base n, it can be written as log of m upon log of n. इसका यूज करेंगे तो this becomes log of a raised to 5 upon log b into log of b cube upon log c into log of c raised to 7 upon log a. देखिए, इस लॉ को हमने यूज किया है log of m to the base n. It can be written as log of m divided by log of n, and it becomes log of a raised to 5 upon log b into this becomes log of a b cube upon log c, and third term becomes log of c raised to 7 upon log a. Now, using log of a raised to m as m into log a, इंडेक्स लॉ जो है, ये चेंज ऑफ बेस लॉ. अब ये इंडेक्स लॉ यहां पर तीनों न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 5 इंटू लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू 3 इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी इंटू 7 इंटू लॉग सी अपॉन लॉग ए. तो अब क्या होगा, ये log a और log a कैंसिल होगा, ये log b और log b कैंसिल होगा, ये log c और log c कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 5 इंटू 3 इंटू 7 and its product is 105 which is equal to RHS. We can say that hence proved. ठीक है, इस तरह से LHS is equal to RHS आएगा, और ये जो अपना टर्म है उसको, ये जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा. देखिए, यहां पे हमें लॉ का यूज करना और वो लॉ याद रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने भी लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो हमें याद रखने हैं, दैट आर वेरी यूजफुल इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स. नाउ थर्ड वन इज log of fourth root of u cube to the base v into log of v raised to 5 to the base w into log of fifth root of w raised to 4 to the base u is equal to 3. सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का, सिर्फ यहां पे पावर जो है u, v और w के कुछ पावर्स फ्रैक्शनल पावर्स है. कैसे पावर्स है, फ्रैक्शनल पावर्स है. तो पहले हम इसकी LHS लिखेंगे. LHS इज इक्वल टू log of fourth root of u cube to the base v into log of v raised to 5
to the base w into log of fifth root of w raised to 4 to the base u. तो इज इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ, अब देखिए फोर्थ रूट ऑफ u क्यूब यानी u का पावर आएगा 3/4, फोर्थ रूट यानी u क्यूब का पावर 1/4, तो 3 into 1/4 is 3/4 to the base v into log of v raised to 5 to the base w and into log of w raised to, now फिफ्थ रूट ऑफ यानी इसका पावर रेज टू 1/5, तो 4 into 1/5 आएगा 4/5 to the base u. अब फिर से यही लॉ यूज करना है, या हम पहले इसको साइड में भी ले सकते हैं, यानी वैसा भी कर सकते हैं. पहले इसको ऐसे लिखा, ये 3/4 into log of u to the base v into 5 into log of v to the base w into 4/5 into log of w to the base u. अब हमने थोड़ा रिवर्स लिया, पहले ये वाला लॉ यूज किया, ठीक है. कौन सा यूज किया है, इंडेक्स लॉ यूजिंग, सिंस वी कैन राइट रीजन हियर, सिंस log of a raised to m to the base b is equal to m into log of a to the base b, ये वाला लॉ यूज किया. तो अब देखिए ये क्या होगा, ये 3/4 into 5 into 4/5 इंटू, अब देखिए ये जो log of u to the base v है, इसको लिखेंगे हम log of u upon log of v इंटू ये log of v to the base w जो है उसको लिखेंगे log of v upon log of w इंटू इसको लिखेंगे हम log of w upon log of u. तो अब क्या होगा, ये log of u log of u log of w log of w और log of v कैंसिल हो जाएगा. ये 4 के साथ 4 और 5 के साथ 5 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू आएगा 3 इज इक्वल टू RHS. वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड. समझ में आ रहा है आपको? चलो इसको फटाफट नोट करो, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इसी में का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ सब क्वेश्चन नहीं है, आपके नोट्स में भी आप देख सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो. द वैल्यूज ऑफ x, y and z आर गिवन इन लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वी हैव टू शो दैट x into y into z is equal to 3. क्वेश्चन सिमिलर है जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का पैटर्न अलग है. तो इसमें भी हम LHS कंसीडर करेंगे. LHS इज इक्वल टू x into y into z, और इसमें x y z के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे हम. तो x की वैल्यू है log of 7 to the base 5 into y की वैल्यू है log of 27 to the base 7 into z की वैल्यू है log of 5 to the base 3. अब लॉस यूज करने हैं. पहले चेंज ऑफ बेस यूजिंग log m upon log of m to the base n is equal to log of m upon log of n. ये वाला लॉग यूज करते हैं. तो इट बिकम्स log 7 upon log 5 into log of 27 upon log 7 into log of 5 upon log 3. सेम लॉ यूज करके हमने तीनों टर्म्स को यूज किया है लॉ. तो ये log 7 और log 7 कैंसिल होगा, ये log 5 और log 5 कैंसिल होगा. यहां पे बचेगा log of 27 अपॉन log 3. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट log of 27 to the base 3.
27 यानी क्या होता है? इट इज log of 3 cube to the base 3, यानी it becomes is nothing but equal to 3 is equal to RHS. देखिए यहां पे बेस और ये बेस सेम हो गया, तो 3 ये आंसर आएगा. सिंस वी कैन राइट हेयर, कौन सा लॉ यूज किया है? यूजिंग log of a raised to x to the base a is equal to x. ये वाला लॉ हमने सीखा हुआ है, या ये वाली प्रॉपर्टी हमने सीखी हुई है. log of a raised to x to the base a is x, उसको यूज किया तो इसका आंसर 3 आएगा, and that is equal to nothing but RHS. Hence LHS is equal to RHS. Therefore we can say that x into y to z is equal to 3. समझ में आ रहा है आपको? तो चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4. Prove that 1 upon log of 24 to the base 6 plus 1 upon log of 24 to the base 12 plus 1 upon log of 24 to the base 8 is equal to 2 प्रूव करना है. तो इसको LHS लेंगे. LHS is equal to 1 upon log of 24 to the base 6 plus 1 upon log of 24 to the base 12 and plus 1 upon log of 24 to the base 8. यहां पे और एक प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं. 1 upon log of a to the base b, अगर ऐसा है तो इसको लिखेंगे हम log of b to the base a, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. ठीक है, तो ये जब इंटरचेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल ये है, ऐसा हम बोलते हैं. तो इसको यूज करके, यूजिंग हम कहेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा बताइए मुझे. इट बिकम्स log of 6 to the base 24 plus log of 12 to the base 24 plus log of 8 to the base 24. अब देखिए log a plus log b plus log c, प्रोडक्ट लॉ हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा. तीनों का बेस सेम है, इसलिए हम ये तीनों लॉग को एक साथ ले सकते हैं. वी कैन राइट इट एज 6 into 12 into 8 to the base 24. क्या यूज किया? log a plus log b plus log c is log of a into b into c. समझे? अब इनका प्रोडक्ट ले लो. 12 6 जार 72 एंड 72 into 18 करो तो कितना आता है देखते हैं. इट इज नथिंग बट log of 18 नहीं 8 है. 72 into 8 is nothing but 576 to the base 24. और 576 ये क्या है? This is the square of 24. We can write it as log of 24 square to the base 24. और यही सेम यूज करके ये क्या हो जाएगा? It is nothing but 2 is equal to RHS. Hence we can say that LHS is equal to RHS. Hence sum of these three terms is nothing but equal to 2. समझ में आ रहा है क्या सबको? चलो फटाफट लिखो, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. Now look at for question number 5. Prove that 1 upon log of ABC to the base AB plus 1 upon log of ABC to the base BC plus 1 upon log of ABC to the base CA is equal to 2. तो इसकी LHS लेंगे. LHS is equal to 1 upon log of ABC to the base AB plus 1 upon log of ABC to the base BC plus 1 upon log of ABC to the base CA. Once again we are using this formula as 1 upon log of A to the base B. It can be written as log of B to the base A. ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये क्या बनेगा? It becomes log of AB to the base ABC plus log of BC to the base ABC plus log of CA to the base ABC.
अब तीनों लॉग है, तीनों का बेस सेम है, तो इनका प्रोडक्ट होगा, तो इज इक्वल टू आएगा लॉग ऑफ ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए टू द बेस ए बी सी। अब ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर टू द बेस ए बी सी। अब ये टर्म और बेस सेम है, इसलिए इसको हम 2 लिखते हैं, सिंस वी कैन राइट log of a raised to x to the base a is always equal to x is equal to RHS, hence proved। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमारे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम या लॉगरिथम के जो टर्म्स है वो उसमें हमने क्या क्या सीखा, मैं एक बार रिवाइज करता हूं और फिर हम कॉमन लॉगरिथम यानी लॉग बुक जो हमें आगे सीखना है। जैसे मुझे एक्सपेक्टेड होगा कि आपने ये ऐसा हुआ लॉग बुक जिसमें लॉगरिथमिक टेबल्स दिए हुए हैं, ऐसा लॉग टेबल आपने लाया होगा जिसमें ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमें सीखना है इन डिटेल्स। तो पहले हम रिवाइज करते हैं जो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। एक बार ये log a प्लस log b इज नथिंग बट इक्वल टू log ऑफ ए बी। मेन रूल्स मैं बताऊंगा सिर्फ जो आपको कायम याद रखने हैं। log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b। ये हम फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS यूज कर सकते हैं। log ऑफ a रेज टू m इज m इंटू log a। फिर log ऑफ 1 बाय a अगर होगा तो इसको माइनस log a ऐसा लिखेंगे। log ऑफ a टू द बेस b अगर है तो इसको हम log a अपॉन log b ऐसा लिख सकेंगे। जो ज्यादातर हमें यूज होने वाले हैं वही लॉज मैं लिख के दे रहा हूं। a रेज टू log ऑफ x टू द बेस a, ये अगर बेस दोनों सेम है तो इसका आंसर x होता है। a रेज टू log ऑफ log ऑफ a रेज टू x टू द बेस a अगर है तो इसको हम x लिखेंगे। लेकिन यही log ऑफ a टू द बेस a रेज टू x ऐसा है तो इसको हम 1 बाय x लिखेंगे। ठीक है, ये याद करके लिख के लेना है। फिर उसके बाद 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b, इट कैन बी रिटन एज log ऑफ b टू द बेस a, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर log ऑफ a रेज टू x टू द बेस a रेज टू y है तो इसको हम डायरेक्टली x अपॉन y लिखेंगे। और लास्ट वन इज log ऑफ a रेज टू x टू द बेस b रेज टू y अगर है तो इसको x अपॉन y इंटू log ऑफ a टू द बेस b ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सभी लॉज शॉर्टली मैंने आपको दिखाए हैं। और एक चीज जो log ऑफ 1 होता है टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, और log ऑफ a टू द बेस a इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है फॉर लॉगरिथम। लॉगरिथम में इतने लॉज अगर आपको पता है तो आप मैथमेटिक्स में जितने भी जगह पर लॉग आने वाला है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वी कैन यूज इट। अब इसके आगे हम सीखने वाले हैं कॉमन लॉगरिथम, हाउ टू यूज दिस लॉग फॉर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के लिए हम लॉग टेबल में इस लॉज के कैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे फॉर लॉगरिथम्स। देखिए कॉमन लॉगरिथम्स, ये पार्ट 2 ऑफ द लॉगरिथम ऐसा बोलेंगे हम। इसके पहले जो लॉगरिथम का पार्ट हमने सीखा है उसमें हमें लॉज और रूल्स ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम की डेफिनेशन, एक्चुअली लॉग क्या है, ठीक है, वो और उसके लॉज कैसे यूज करने उसके बारे में हमने सीखा। अब कॉमन लॉगरिथम, इसके पहले भी हमने ये डेफिनेशन में एक लिख के दिया था कि कॉमन लॉगरिथम इज अ लॉगरिथम विथ बेस 10। जिस लॉगरिथम का बेस 10 होता है उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अब ये लॉग यूज कैसे करना है
और एक आधे नंबर का लॉग फाइंड कैसे करना है, उसमें ये लॉग बुक का यूज कैसे करना है, ये हमें सीखना है। तो देखिए, किसी भी नंबर का जब लॉग देखना है तो हम पहले ऐसे लिखेंगे कि इफ x इज एनी गिवन नंबर देन log of x इज सम ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स की एडिशन है। एक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x और उसमें ऐड करना पड़ता है मैंटिसा फॉर x। ये दो वर्ड याद रखो। किसी भी नंबर का लॉग देखना है तो पहले देखना पड़ेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक और फिर बाद में उसमें ऐड करना पड़ेगा मैंटिसा फॉर x। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर इट कैन बी फाइंड आउट यूजिंग ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन राइट। नंबर को सिर्फ ऑब्जर्व करके हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। और मैंटिसा पार्ट जो है फ्रॉम लॉग बुक, इसको हमें लॉग बुक से लिखना है। और वी कैन से दैट फ्रॉम लॉग बुक और लॉग टेबल। लॉग बुक और फ्रॉम लॉग टेबल। ऐसे जो लॉग टेबल की बुक है इसमें एक लॉगरिथम वाला कॉलम रहता है। क्या रहता है इसमें? लॉगरिथम्स वाला कॉलम रहता है जिसमें लिखा हुआ है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स ऐसे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो कि देखो। तो ये जो मैंटिसा पार्ट है इसमें से देखना है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बाय ऑब्जर्वेशन। तो अब हम पहले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सीखेंगे। तो पहले सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर। किसी भी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक आपको देखनी है तो कैसे देखनी है? देखिए, इसमें दो पार्ट करते हैं। नंबर लेस देन 1, दैट इज 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। अब हमें यह तो पता है कि ये जो x है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि जिस भी नंबर का हम लॉग देखते हैं वो पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ओनली एग्जिस्ट। सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही लॉग हम देख सकते हैं। यानी हर एक नंबर जिसका हम लॉग देख रहे हैं ये 0 से बड़ा वाला नंबर है, ठीक है, 0 से बड़ा। लेकिन 0 से बड़ा होके अगर वो नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखनी है? यानी नंबर बिटवीन 0 to 1 इज ऑलवेज अ नंबर 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग वाला नंबर होगा। तो इसके लिए रूल याद रखना है कि इफ, इसमें डायरेक्टली रूल लिखता हूं मैं, काउंट द नंबर ऑफ zeros immediately after a decimal point of given number if they are n, then its characteristic is minus of n plus 1, or we can write n plus 1 bar, n plus 1 bar,
कैरेक्टरिस्टिक लिखने के दो टाइप है, एक माइनस में या बार में, अगर नंबर कैसा है, लेस देन 1 है। यानी फॉर एग्जांपल यहां पे मैं नंबर लिखता हूं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं। कोई भी नंबर दिया है, समझो आपको नंबर दिया है 0.0813, ऐसा नंबर है जिसका हमें कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, जिसका लॉग देखना है। लॉग के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक जरूरी होती है, और इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है, इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट बोला, जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने जीरो है वो काउंट करो। ये एक जीरो है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 2। कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, बार 2। इसे -2 भी कहा जाता है, ठीक है, लिखना बार 2 है, लेकिन ध्यान में उसको -2 ऐसे कंसिडर करना है, वो -2 है। तो बार 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 1 जीरो इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट। समझो दूसरा एक नंबर है 0.00589, तो इसमें कितने जीरोज आ गए, अब 2 जीरोज आ गए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आई बार 3। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई, बार 3 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर। थर्ड एग्जांपल लेंगे 0.9058, तो पॉइंट के बाद कितने जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, ये जीरो काउंट नहीं करना है, इमीडिएटली बोला है, इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के इमीडिएटली आफ्टर एक भी नहीं है, यानी कितने जीरोस है, 0 जीरोस है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 1। समझो नंबर है 0.01053, after decimal point there is only 1 zero, therefore its characteristic is bar 2। 0.0007, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 4। पक्का याद रखो इसको। 0.00801, पॉइंट के बाद इमीडिएटली 2 जीरोस है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी बार 3। इसको नोट करो, ये इट्स अबाउट अ कैरेक्टरिस्टिक ओनली। किसी भी नंबर को देख के हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो ये नंबर्स पूरे ऑब्जर्व करो और इस नंबर के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो। समझो एग्जांपल है ओनली 0.7, तो पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बार 1 आएगी। तो ये एग्जांपल्स लिखो, ये जो रूल मैंने लिख के दिया है कि इफ नंबर इज लेस देन 1, then while finding the characteristic of the number, remember this, count the number of zeros immediately after the decimal point in that given number। दिए हुए नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है उसके इमीडिएटली आफ्टर कितने जीरोज है वो काउंट करो, वो जितने भी जीरोज है उसमें +1 करके उसको माइनस साइन दे दो या उसके सर पे बार रखो, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट इसमें देखने वाले हैं जिसमें द नंबर इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा अगर नंबर होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखते हैं। तब तक आप ये लिख लो, पूरा लिख रहे हो? चलो मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए इसमें बी है नंबर ग्रेटर देन 1। we can say that is x is greater than 1, एक से बड़ा वाला नंबर है। तो क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स बोला है। यहां पे हम क्या काउंट करते थे, नंबर ऑफ जीरोज काउंट करते थे। कहां के नंबर ऑफ जीरो काउंट करते थे, इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट,
यहां पे क्या करना है, काउंट देखिए, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, बिफोर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है इन द गिवन नंबर। If they are n, then n minus 1 is its characteristic. क्या है कैरेक्टरिस्टिक, n माइनस 1 कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम नंबर लिखते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। समझो आपको दिया हुआ नंबर 13.18 है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट के प्रीवियस कितने डिजिट्स है वो गिनो, कितने डिजिट्स है, कौन सा डिजिट है ऐसा नहीं बोला, कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है, एक दो, दो डिजिट्स है, यानी n की वैल्यू 2 हो गई, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 1। दूसरा समझो नंबर है 435.91, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 2। समझो नंबर है 7.105, पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है, एक ही है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी, 0। समझो नंबर है 73.001, अब पॉइंट के बाद के जीरो नहीं गिनने के, नंबर ग्रेटर देन 1 है, ये नंबर देखो कैसे है, ऑल दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े हैं, तो इसमें पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है वो गिनो, दे 2 है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, 1 आएगी। ये बहुत इजी है, समझ में आ रहा है कि देखिए हम अब मैं ये दोनों लॉज साफ कर दूंगा और फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, आप तब तक इसको लिख लो। क्या करना है, नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है वो काउंट करो, वो जितने भी डिजिट्स है उसमें से एक नंबर कम करो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कभी 0 हो सकती, कभी 1 हो सकती, कभी 2 हो सकती है, कभी 3 हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, चलो इसको लिख लो, फिर बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए किसी भी नंबर के बारे में आपको लिख के नहीं आएगा कि ये नंबर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर देखते ही आपको वो पता चलना चाहिए कि दिस नंबर इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, और उस हिसाब से हमें उसकी प्रॉपर्टी या रूल याद रख के उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। इसलिए मैं ये प्रैक्टिस ले रहा हूं अभी आपकी, नंबर देखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। जैसे मैं नंबर लिखता हूं 85.183, पहले इस नंबर को पूछना है कि तू 1 से बड़ा है या छोटा है। नाउ दिस नंबर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, दे आर 1 and 2, 2, इट मींस इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 1। ठीक है, दूसरा नंबर है, सपोज दैट नंबर इज 0.9058, तो नंबर कैसा है, 0 पॉइंट है, यानी डेफिनेटली दिस नंबर इज लेस देन 1, तो पॉइंट के आगे इमीडिएटली कितने जीरोस है वो काउंट करो। यहां पे पॉइंट के आगे इमीडिएटली पॉइंट को चिपक के, नेक्स्ट इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर इज नो जीरो, नो जीरो मींस देयर इज 0 zeros आर देयर, उसमें 1 प्लस करो, ऐड करो 1 एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक 0 + 1 is 1, लेकिन ये बार 1 होगी, यानी नंबर जब लेस देन 1 होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती है, वो -1। सपोज दैट नंबर इज, थर्ड एग्जांपल, सपोज नंबर इज 0.0095, then immediately after decimal point there are 2 zeros because number is less than 1, its characteristic is bar 3, bar 3 is its characteristic। समझ में आ रहा है। नंबर 4, if number is 5.007,
तो क्या आएगा ये? पॉइंट के इमीडिएटली आफ्टर कितने जीरोस है? गलत हो रहा है? क्या करना है? दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो पॉइंट के बिफोर कितने डिजिट से होगी? नो, दैट इज 1 डिजिट, देयरफॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज 0। 1 में से 1 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? 0 कैरेक्टरिस्टिक आएगी। एक आधा नंबर है, समझो ऐसा दिया है आपको, नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, दिस नंबर इज 78। यानी इसमें डेसिमल पॉइंट कहां होता है हमें पता है, ये परफेक्ट नंबर है या इसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर अगर आया तो इसके बाद यहां पे डेसिमल पॉइंट होता है, तो पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 1। अगर एक आधा नंबर सिर्फ ऐसा दिया है, हमें सिर्फ 9 दिया है, 9, तो इसके डेसिमल पॉइंट कहां पे होगा? यहां पे होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 0। सपोज इट इज 0.09007। Immediately after a decimal point there is only 1 zero, therefore don't count these zeros। पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो, इमीडिएटली आफ्टर जितने जीरोस हैं उतने ही काउंट करने हैं, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी /2, क्योंकि पॉइंट के इमीडिएटली आफ्टर सिर्फ एक ही जीरो है, तो /2 इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। एग्जांपल नंबर 8। अब थोड़ा एग्जांपल का क्राइटेरिया चेंज कर देता हूं। कभी कभी ऐसा आता है 0.893 इंटू 10⁵, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखने, देखिए अब हमें पता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है। ये नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी /1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते समय इसकी कैरेक्टरिस्टिक /1, और यहां पे इंटू है, हमें पता है कि लॉग में प्लस किया जाता है, इंटू का क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। तो उसमें ऐड करेंगे हम, ये 10 का जो भी पावर है इसमें ऐड करने का है +5, दैट इज +4। 10⁵ का मतलब क्या होता है? 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 जीरोस। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो डेसिमल पॉइंट 5 डिजिट आगे जाता है, यानी ये 89300 ऐसा होता है, और पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 10⁵, इट विल बिकम्स 89300। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? अब पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए, तो इसलिए हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं 4। जितने नंबर्स है या जितने डिजिट्स है पॉइंट के पहले, उसमें 1 माइनस करना है उसमें से, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगी। तो हम शॉर्ट यूज करते हैं उसको, क्या करेंगे? सिर्फ इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे और उसमें +5 करेंगे। अब सेम एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर ऐसा आया कि 0.893 इंटू 10⁻⁻12, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ज्यादा यूजफुल होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर देखनी है तो हमें पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 है, और ये यहां पे 10 का पावर -12 है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी -13 यानी इसको हम 13 बार लिख सकते हैं, /13 इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ रहा है कि? देखिए समझो नंबर ऐसा है 75.08 इंटू 10⁻⁻7। तो क्या करना पड़ेगा? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो पहले। ये नंबर कैसा है? लेस देन या ग्रेटर देन 1? ग्रेटर देन 1। ओके, तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1। इसको 1, और इस यहां पर 10 का पावर -7 है, यानी -7 करो, ये आएगा -6, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं हम /6। समझ में आ रहा है? 11 नंबर समझो, नंबर है 836.5 इंटू 10⁻⁴, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? 2, और प्लस 10 का पावर कितना है? 4, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 6। ये +6 होगी, -6 नहीं, +6। ठीक है, ये +6, ये -6 है। समझ में आ रहा है? 12 नंबर
समझो नंबर है 0.819 0.0059 इंटू 10⁻⁻3। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो। नंबर लेस देन 1 है तो पॉइंट के बाद इमीडिएटली कितने जीरोज आए वो काउंट करो। कितने जीरोज है? 2 जीरोज है, 0 0। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई? 2 जीरोज है तो उसमें +1 करके बार लगाना है, यानी बार 3, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई -3 और यहां पे इसका पावर है -3, तो ये टोटल होगा -6, यानी बार 6 इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? बार 6। समझो नंबर एक आधा 0.08105 इंटू 10⁻²। तो क्या करेंगे? पॉइंट के बाद कितने जीरो है? एक ही जीरो है, तो जीरो एक है, यानी 1 + 1 2। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी -2 और +10 का पावर है 2, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई? 0। समझ में आ रहा है आपको? ये कैरेक्टरिस्टिक ये वाले नंबर से याद रखो। अगर इंटू 10⁻² वाले नंबर आ गए, ये ऐसे नंबर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो फिक्स वैल्यूज होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो या कोई भी नंबर्स हो, तो उसका जब हमें कैलकुलेशंस करना है, कैलकुलेशन में उसको यूज करना है, तो हमें ये लॉग टेबल का यूज करके अगर कैलकुलेशन करना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखने आना जरूरी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अच्छे से पढ़ो इसको, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स है धीरे 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 एक एक करके एग्जाम्पल्स आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। 40 नंबर का एक एग्जाम्पल और लेता हूं। 75.93 इंटू 10⁻⁻11। कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी बोलो मुझे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 1 और ये आएगा +-11, तो ये आएगा -10, यानी कैरेक्टरिस्टिक होगी बार 10। क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक? बार 10। तो लॉगन हमने कॉमन लॉगरिथम का जो पार्ट स्टार्ट किया है, उसमें आज हमने नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखना ये सीखा है। अब आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस नंबर का मैंटिसा पार्ट देख के उसको कैरेक्टरिस्टिक के साथ कैसे जोड़ना है, मैंटिसा पार्ट लिख के उसको कैरेक्टरिस्टिक के साथ कैसे जोड़ना है वो देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।